CSA of cone, suppose this figure is a cone, this is a base, suppose this is radius, and this one is a height, like as a cylinder. In a cylinder, this one is a radius and this one is height. Clear? So this is represent radius of a cone and this one is a height of a cone. So center O हो गया, ये A and this one B. Clear? So in cone we know that radius and height, but use in slant height. Slant height means क्या होता है? Slant height means that this one is known as a slant height. It is represented by L. Clear? So in a slant height in cone, always we use slant height, not a height. Height आप use नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या use करेंगे? Slant height. Clear? So in a slant height is equal to slant height क्या हो जाएगी? आपकी L, जो आपको find out करना है. ये आपको OAB triangle OAB is a right angle triangle. Right angle at a 90 degree here. So at a point O is equal to 90 degree. So how can find when we given R and H, radius and height given है, तो हम slant height कैसे find out करेंगे? In a Pythagoras theorem, hypotenuse means AB square is equal to this one. AB square is equal to OA square plus OB square. Here base square and perpendicular square. H square is equal to B square plus H square. Here is H means यहाँ पे क्या है आपका L square. ठीक, अब L square is equal to क्या हो गया? बेस आपका क्या है R, तो L square is equal to R square plus H square. जब यहाँ से हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो L is equal to root of R square plus H square. How can find slant height? Slant height formula of slant height, L is equal to root of radius square plus height square. Radius square plus height H square. Clear? So in a cone, always find the slant height if it is not given. When we are given only radius and height, then we find slant height. So CSA of cone, क्या हो जाएगा? CSA of cone is equal to pi R L. Pi is 22/7, R is represent radius and L is represent slant height. And TSA of cone क्या हो गया आपका? TSA क्या होता है? कर्व बताया था, ये आपका हो गया कोण. तो TSA आपका सिर्फ आपका ये पोर्शन जो हुआ ये क्या होगा आपका? CSA. और TSA आपका दिस वन यानी CSA प्लस बेस, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. एंड TSA ऑफ कोण क्या हुआ? पाई आर एल CSA प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर. अब दोनों से पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? L प्लस आर. तो TSA ऑफ कोण आपका फॉर्मूला क्या? पाई आर L प्लस आर इज TSA ऑफ कोण. TSA मीन्स क्या हो गया? CSA प्लस एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस इज सर्कुलर, सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. एंड CSA ऑफ कोण वी नो दैट पाई आर L. L represent slant height. Yeah, L represent slant height. And H represent straight height, means perpendicular height. H perpendicular height. So
In cone, first we find the slant height, then can use in a formula. Slant height CSA में भी है आपका, TSA में भी है. So सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, L, और L फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला रूट ऑफ R square plus H square, when R represent radius and H represent height of a cone. So in a first question 13.3, first question is a conical tank 10 meter high, means H is equal to given 10 meter, and radius of its base is 24 meter, and radius of its base is given 24 meter. Find the slant height of the cone and cost of the canvas required to make the tent. If the cost is 1 meter square, canvas is ₹70. The first find L. L is equal to root of R square plus H square. R is 24 square plus H means 10 square. 24 square is 576 plus 10 square means 100 is equal to root of 676. 676 square root of 676 क्या होगा आपका, is a 24 का क्या है 576, 676 क्या होगा 26 into 26 आप कर लोगे 670 स्क्वायर रूट, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई 26. फर्स्ट फाइंड द, क्या फाइंड आउट करना है, कोनिकल टैंक, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक. तो टैंक की रिक्वायरमेंट क्या होगी, सिर्फ CSA की, तो CSA ऑफ टेंट क्या हो जाएगा आपका, एल की वैल्यू क्या आ गई 26 मीटर. CSA ऑफ टैंक, CSA of tent is equal to pi r L. Pi की वैल्यू is used 22/7. R is given 10 and R is given 24 and L is given 26. We find it. L की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की थी 26. Put the value and solve the. So suppose इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास. सो क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट. रेट इज गिवन 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई बाई जो भी एरिया आएगा उसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 70 से. दैट वन इज क्या हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट ऑफ अ कैनवास. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what length of a tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tank of a height 8 meter and base of radius is 6 meter. Means height is given 8 meter. Base of radius of base is given. Base radius is given. R is equal to 6 meter. Yeah. और length of the tarpaulin means आपको जिस कपड़े से बनाना है उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. What the length of tarpaulin is 3 meter wide is given. तो लेंथ we don't know, breadth is given 3 meter. इसके थ्रू क्या बनना है, कैनवास बनना है. इस कैनवास को यूज करके आपको क्या बनाना है, टेंट बनाना है. So assume that the extra length of material that will be required for the stitching margin and wastage is cutting is approximately 20 centimeter. जो वेस्टेज इसमें हो रहा है इस टेंट बनाने में, सपोज इस तरह से टेंट बना, तो जो एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रहा है जो भी, वो आपका है 20 सेंटीमीटर. तो सारी चीज आपकी मीटर में है, तो इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में. तो 20 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो जाएगा 0.2 मीटर. क्लियर. तो उसको आपको ऐड कर देना लास्ट में जो भी आएगा आंसर उसमें. अब आपको इसमें सबसे पहले आपको h गिवन है, r गिवन है, l we can find the root of r square plus h square. r square 6 square plus 8 square 36 plus 64
36 plus 64 is 100. 100 is square root is 10 meter. So L क्या आ गया, slant height is equal to 10 meter. So area of cone, CSA of cone, pi r l. CSA of cone, but here is given. use pi की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है, 3.14 यूज करनी है इन क्वेश्चन गिवन. जिस क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू गिवन हो आप उसमें वही वैल्यू यूज करेंगे. अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं गिवन है देन आप यूज करेंगे 22/7. तो CSA ऑफ कौन, पहला CSA ऑफ कोनिकल टैंक क्या हो जाएगा, पाई आर एल. पाई की वैल्यू 3.14. आर इज गिवन, आर आपको कितना था, आर इज गिवन 6. हाइट, स्लाइंट हाइट हमने कितनी फाइंड आउट की, 10. मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 60, 188.40 क्या आ गया आपका मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब ये तो आ गया आपका CSA ऑफ कोनिकल टैंक. अब दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कैनवस, जितना आपका कैनवस जितनी आपकी क्लॉथ थी उसके इक्वल होगा एरिया. एरिया क्या होता है इसका, आपका जो क्लॉथ था वो एज अ रेक्टेंगुलर पीस यानी L इंटू बी. तो दिस वन इज इक्वल टू L इंटू बी, एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ टारपुलिन. तो एरिया ऑफ टारपुलिन L इंटू बी. L इज फाइंड करना है, B इज गिवन 3 इज इक्वल टू 188.40. L is equal to 188.40 upon 3. 6 3 6 are 3 2 are 0.8 मीटर. ये क्या आ गया आपका 62.8 मीटर आपकी क्या आ गई लेंथ. बट here is given टोटल लेंथ क्या होगी, इसमें था क्वेश्चन में गिवन था आपको कि वेस्टेज इज कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था 0.2 मीटर. सो ये भी आपका टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है. टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, इसमें हम ऐड कर देंगे टोटल लेंथ इज इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2 is equal to 63 meter is the length of a cloth used in a conical tank. Clear? Next question is question number 3. The slant height and base diameter of conical dome are 25 meter and 14 meter respectively. Means height is given. Suppose height given है h is equal to 25 meter. Slant height given and not height is given. Slant height L is equal to 25 meter and diameter is 14 meter. But we can use radius. So 14 upon 2 is equal to 7 meter. Is a radius. You can find the cost of the whitewashing its covered surface at the rate of 210 per 100 meter square. And rate given है. Rate क्या given है, 210 rupees per 100 meter square. Yeah. तो फर्स्ट वी कैन फाइंड, क्या फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले, इसमें फाइंड आउट करेंगे CSA ऑफ कोन. रेट आप फाइंड कर सकते हैं पर मीटर स्क्वायर. तो कैसे करेंगे, 210 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2.10 पर मीटर स्क्वायर. 100 मीटर में कॉस्ट कितनी लग रही है, 210. तो 1 मीटर में कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2.10. क्योंकि जो आपका आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा. तो इसमें सिर्फ आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अदरवाइज 210 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और 1 मीटर स्क्वायर निकाल के भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं.
तो आपको जो इसमें दिया है फाइंड आउट क्या करना है, CSA अगेन। वाइट वॉश क्या होगा आपका, इसमें होगा, बेस में उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। सो यूज द पाई वैल्यू 22/7 एंड R इज गिवन। R कितना फाइंड आउट किया, 7। L इज 25। 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 is 555। 550 क्या आ गया आपका, मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कोनिकल टैंक इज 550 मीटर स्क्वायर। सो वी कैन फाइंड कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉश। तो क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट। एरिया इज 550 मल्टीप्लाई बाई रेट इज 2.10। मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका एरिया। मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आंसर इज, इसका डबल 550 का 1 कर दिया 1155 रुपीज। 1155 rupees cost of the total white wash. Next question is question number 4. is given joker cap in the form of the right circular cone of base radius 7 and height is 24. base radius 7 ही है, height इसमें दिया है 24. so cap in the shape of a cone. Joker cap is the shape of a cone where height is given 24, means h is equal to 24 is a centimeter and base radius is a 7 centimeter. Yeah. So find the area of sheet required to 10 such caps. Again, ये तो 1 cap के लिए first find the area of 1 cap. तो area of joker cap क्या हो जाएगा, CSA of cap pi r. Pi is 22/7. R is given 7 and L is given. L क्या find out क्या करना पड़ेगा, L. So first find the root of L, find करना पड़ेगा. L is equal to root of R square plus H square. R is given 7 square and H is given 24. इसकी value 7 square 7 into 7 49 and 24 into 24 576. दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 625. 625 is square root of 25, यानी L की वैल्यू क्या आ गई, 25. पुट द वैल्यू। अभी इसके पहले यही सॉल्व किया था, 22 इंटू 25, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया आ गया। अब कितनी, ये कितने शीट के लिए हुआ, ओनली 1 कैप के लिए, तो 10 कैप के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10. आंसर इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. CSA of 10 such caps, 10 such the type of caps. Okay. Next question. Question है, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. बैरिकेड लगाई गई है यूजिंग कोन्स से बैरिकेड किया गया है रोड को. क्लियर. और कितने कोन्स है वो आपके, दिस इज वन इज गिवन 50 hollow cones. 50 cones are there. Clear. Barricaded by road, 50 hollow cones. तो make of recycled cardboard. All cones made by, इससे बनाए गए कार्डबोर्ड से. each cone has a base diameter. Diameter is given 40 centimeter. जो भी गिवन है पहले आपको निकालना. हाइट इज गिवन 1 मीटर.
Yeah. If outer side each cone is to be painted and cost is painting rupees 12 per meter square. Rate is given rupees 12 per meter square. Clear? And also here is given a hint. Pi की वैल्यू 3.14 यूज करना है and take root of 1.04 is equal to 1.02. ये गिवन है, आपको फाइंड आउट नहीं करना कि अगर कहीं रूट की वैल्यू रूट ये आ रहा है तो आप उसकी जगह क्या यूज करोगे 1.02. तो फर्स्ट वी फाइंड, हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं स्लैंट हाइट. तो इसमें आपको 1 सेंटीमीटर में गिवन है और 1 इज मीटर में. सो दोनों को हम किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में. तो ऑलरेडी हाइट इज गिवन 1 मीटर. तो हियर इज गिवन डी को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे r is equal to d by 2 diameter. Radius is a half of a diameter. So 40 upon 2 is equal to 20 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में. यानी कि आ गया 0.2 मीटर. ठीक है, 0.2 मीटर आपका आ गई आर और हाइट को गिवन है 1 मीटर. सो स्लाइंट हाइट क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. R is 0.2 square and H is 1 square. 0.2 into 0.2, 0.004 ये आएगा. अब आपने इस 0.004 प्लस 0.004 ये किया, 0 कैंसिल कर दिया. 0.04 2 आपके पॉइंट आने चाहिए. 1 2 डिजिट है तो आपके आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट. तो ये बस 1. टोटल क्या आ गया 1.04. और 1.04 की जगह हमें क्या करना है यूज 1.0. अगर रूट की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1.04, यानी एल की वैल्यू आपकी आ गई रूट ऑफ 1.04 is a square root of 1.04 is given 1.02. आप ये यूज करेंगे. एल की वैल्यू क्या होगी 1.02 मीटर. अगेन फाइंड द CSA ऑफ कोन. CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल. पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है. आर इज गिवन 0.2 एंड एल इज 1.02. सॉल्व करें. 3.14 into 2 to the 4 0. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो आंसर आएगा वो किस में आएगा आपका, मीटर स्क्वायर. सपोज आ रहा है 0.64 मीटर स्क्वायर. जो भी आंसर आ रहा हो उसको आप देख लेंगे. 1 2 3 4 डिजिट में आपका इतने ही कुछ आएगा अप्रॉक्सीमेटली मीटर स्क्वायर. अब इसके बाद आपका ये क्या है, CSA ऑफ 1 कोन. CSA ऑफ 1 कोन हम कितने कोन यूज हुए 50 कोन्स. तो 0.64 मल्टीप्लाई बाई 50 टोटल नंबर ऑफ कोन्स कितने यूज हुए इज इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड यूज हुआ. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, आउटर साइड को पेंटिंग यूज करना है. कितने आपके हैं 12 रुपीज. तो आप एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट. एरिया आपका आ गया 32 मल्टीप्लाई बाई 12. मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल दिस कोन्स. आपको वही निकालना था, वो फाइंड आउट करना है. ठीक. सो इन दिस कोन सारे क्वेश्चंस में आपने देखा है सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है, CSA. और CSA ऑफ कोन फाइंड आउट करने के लिए मेन आपको क्या चाहिए, स्लाइंट हाइट. स्लाइंट हाइट. स्लाइंट हाइट मीन्स क्या हुआ एल. और एल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोज AOB is a triangle
right angle triangle. So Pythagoras theorem, h square is equal to, according to h hypotenuse square, means AB square is equal to OA square plus OB square. AB स्क्वायर क्या है, L स्क्वायर, OA R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और L इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। मेन आपको यही लिखना है, स्लाइंट हाइट आपकी क्या होगी, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस स्क्वायर। फर्स्ट फाइंड, अगर R और H गिवन है, अगर L ऑलरेडी गिवन है तो डोंट फाइंड L, ठीक है। आपको अगर R और H रेडियस और हाइट गिवन है तो फर्स्ट फाइंड द L, बिकॉज L कोई भी आप ना सी एस ए फाइंड आउट कर सकते हैं ना, और ना ही टी एस ए, क्योंकि उसमें यूज क्या होना है, स्लाइंट हाइट। तो फर्स्ट फाइंड द स्लाइंट हाइट, देन फाइंड द एरिया ऑफ कोन, चाहे वो सी एस ए हो चाहे वो टी एस ए हो। क्लियर? तो सी एस ए और टी एस ए, सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, और टी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल प्लस आर। ये टी एस ए ऑफ कोन, और टी एस ए ऑफ कोन कब आप यूज करते हो, जब उसमें बेस भी आपको यूज करना हो। बेस में भी अगर आप क्लॉथ यूज करोगे तब आप क्या यूज करोगे, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस। अदरवाइज आपको सिर्फ टेंट में मैक्सिमम आपका हमेशा क्या यूज होता है, सी एस ए यानी पाई आर एल यूज होता है। कोई क्वेश्चन कभी कभी होते हैं जिसमें टोटल एरिया भी आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है उसमें आपको साइन हाइट फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ सी एस ए ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। इसके अलावा इसमें और कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि कुछ टी एस ए फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर ओनली, क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस आर देयर and all questions are based in CSA of cone पे ही आपके बेस। सपोज वन मोर क्वेश्चन, अगर आपको एक बोलूं, suppose there are two cones have their heights in ratio 1:3 and radius of their bases is 3:1, show that their surface area यानी CSA of cone क्या होगा, वो फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, हाइट दोनों की, दो टू कोन्स हैं, इसकी हाइट का रेशियो दिया हुआ है h1। सपोज एक कोन हो गया h1, कोन C1, और दूसरा हो गया C2, C1 एंड C2। इसकी हाइट क्या हो गई h1 और रेडियस r1, और इसकी हाइट h2, रेडियस क्या हो गई r2। अब h1 और h2 यानी हाइट के रेशियो क्या दिया है, 1:3, और रेडियस का क्या दिया हुआ है रेशियो, 3:1। तो फाइंड आउट करना है सी एस ए दोनों के, सी एस ए 1 एंड सी एस ए 2 दोनों का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट कोन और एरिया ऑफ सेकंड कोन का रेशियो क्या होगा। तो हाइट जहाँ पे है तो हम इसमें रेशियो क्या फाइंड करें, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर L1, यही होगा पाई आर L1, और इसका क्या हो जाएगा, पाई आर L2, और L1 L2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और उसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। ज़्यादातर ये इस तरह के क्वेश्चंस किस में आते हैं, वॉल्यूम्स में आते हैं, एरियाज में नहीं आते। क्लियर? तो आपको इसमें से वो वैल्यू चूज करके और पुट करके और उनका रेशियो निकाल दें। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ होते हैं, उनको आपको फाइंड आउट कर, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बाद में करा देंगे। कि आपकी एक्सरसाइज क्या थी, 10.3 इज अ कोन, surface area CSA of cone and TSA of cone. Yeah. So do this exercise 13.3. Have you any problem? Write in a comment box.
Write your name on comment box for attendance.